My most sincere greetings to one and all, and welcome to DS English. I am Deepmala Sharma, and today we are going to discuss a poem for the students of class 11 from their books Hornbill. The title of the poem is Childhood. It's a very beautiful poem composed by a famous Norwegian poet, Marcus Nathan. Now, first of all, let us discuss something about the poem. The central theme of the poem is the attempt to identify when exactly the poet lost his childhood. जो poem है basically वो किस बारे में है कि इस poem में poet मार्कस नेथन try कर रहे हैं ये find out करने के लिए कि उनका जो childhood है means उनका जो बचपन है वो उनसे दूर कब हो गया। अब आप भी इस बात को मानते ही होंगे कि हमारी लाइफ में जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है, अगर हम बात करें चाइल्डहुड फेज की, यूथ एज की या ओल्ड एज की, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा गोल्डन मोमेंट्स हैं, हमारा जो सबसे सुंदर टाइम है इस लाइफ का, वो कौन सा होता है? जी हाँ, हमारा बचपन। हमारे बचपन को, बचपन की यादों को, बचपन में की हुई मस्ती को हम कभी भी नहीं भूलते। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फेज चाइल्डहुड इज़ कि ये जो फेज है ये इनोसेंस से भरी हुई होती है। बच्चे को देखकर हम जो सोचते हैं वो कितना भोला होता है। इवन ये भी कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो तो भगवान का रूप होते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि पोएट भी अपने चाइल्डहुड को, अपने चाइल्डहुड की फेज़ को, उस टाइम को, उसकी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड वो बार बार इस पोएम में एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा जो बचपन है वो मुझसे कब खो गया। When did my childhood go? एंड एक और क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल लास्ट स्टेंजा में रेज किया है, दैट इज कि मेरा जो बचपन है वो कहाँ चला गया, कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। एंड इन्हीं क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो पोएट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इस पोएम में। एंड हेंस द थीम इज द पोएट इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन एग्जैक्टली ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। Moreover, in his quest to find the moment he grew up, Marcus highlights the innocence and faith he lost even as he gained rational individuality. Adolescence is usually a confusing time for a child who is unable to immediately come to terms with the physical, hormonal, and psychological changes in his or her personality. He no longer feels like a child but is not quite ready to call himself an adult either. Marcus seems to be echoing this thought as he underscores how in our childhood innocence lay our ability to appreciate the simpler aspects of life, and thus the child can teach the adult how to appreciate things the later often takes for granted. तो इस तरह से ये पोएम का थीम है and it was all about the introduction of the poem. Now let us read the text of the poem. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That's all I know. Now, let us start the explanation of the poem. Come to the first stanza. When did my childhood go? Obviously, the poet is starting to search about the time when he lost his childhood. Was it the day I ceased to be 11? Here, ceased, this word means stopped. Okay? तो पोएट पूछते हैं कि मेरा जो बचपन है वो मुझसे दूर कब हो गया, मेरा बचपन मुझसे कब खो गया। क्या ये वो दिन था जब मैंने 11 साल का होना बंद कर दिया? मीन्स जो पोएट है अब 11 साल का नहीं रहा। ओके, तो सीज्ड का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, स्टॉप्ड। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी?
तो पोएट सेकंड जो इसके लिए ओपिनियन देते हैं या सेकंड जो उनका आर्ग्यूमेंट है इस चीज़ के लिए, आंसर है इस चीज़ के लिए कि उनका जो बचपन है वो उनसे दूर कब हो गया या बचपन कब खो गया, तो वो सेकंड बात ये बताते हैं कि क्या ये वो टाइम था जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन, हेल का मतलब क्या होता है, यस नरक, और हेवन का मतलब स्वर्ग। तो पोएट ये पूछते हैं कि क्या ये वो समय था जब मैंने ये महसूस किया, ये रियलाइज़ किया कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई चीज़ें हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको हम ज्योग्राफी की बुक में, मैप्स में कहीं भी लोकेट नहीं कर सकते, राइट। तो हेल और हेवन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें स्पेशली जब एडल्ट्स होते हैं, बड़े होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं हमारे, वो बच्चों को जो कोई बात भी बता देते हैं, बच्चे उसके ऊपर आसानी से बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने अभी ज़्यादा दुनिया नहीं देखी हुई होती, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर हम बच्चों से ये कह देंगे कि बेटा अच्छे अच्छे काम करोगे तो तुम हेवन में जाओगे, स्वर्ग बहुत सुंदर होता है, वहाँ पे हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, और अगर हम बच्चों से ये कहेंगे कि अगर तुम गलत काम करोगे, बुरे काम करोगे तो तुम कहाँ जाओगे, नरक में, तो बच्चा जो है वो इजीली बिना अपनी रैशनल पावर्स को यूज़ किए हुए इन बातों के ऊपर विश्वास कर लेता है। तो पोएट यहाँ ये कहना चाहता है कि क्या ये वो दिन था जब मैं बच्चा नहीं रहा या मेरा बचपन मेरे से दूर हो गया, जब मैंने ये सोचना महसूस शुरू कर दिया कि हेल और हेवन तो होते ही नहीं। ओके, क्यों नहीं होते? मेरे में रैशनैलिटी आ गई कि क्योंकि हम उनको ज्योग्राफी की बुक्स के अंदर लोकेट नहीं कर सकते। अब ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, जितनी भी प्लेसेस हैं उनको मैप के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोकेट कर देते हैं, राइट। तो हम जब हेलो हेवन को कहीं दिखा ही नहीं सकते किसी भी मैप पर, ज्योग्राफी के मैप पर, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो पोएट ने जब ये रियलाइज किया, क्या उस समय उसका बचपन उससे दूर हो गया, and therefore could not be, was that the day। तो पोएट यहाँ पर बेसिकली ये दो बातें कह रहे हैं कि क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का नहीं रहा, 11 साल से बड़ा हो गया, ओके, या क्या ये वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि हम उसे ज्योग्राफी की बुक्स में नहीं शो कर सकते। Now come to the second stanza। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? नाउ यहाँ पर पोएट एक और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, और यहाँ पर बेसिकली जो पोएट हैं वो इज टॉकिंग अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट्स। ओके, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेटिक होने का क्या मतलब है? हिपोक्रेटिक होने का मतलब है हैविंग डबल स्टैंडर्ड्स, कि हम होते तो कुछ और हैं अंदर से लेकिन दिखाई कुछ और देते हैं, हैविंग डबल स्टैंडर्ड्स, हैविंग डबल मीनिंग्स। ओके, तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, अगेन द पोएट इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन मेरे से कब दूर हो गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? तो पोएट पूछते हैं कि क्या ये वो टाइम था जब मैंने ये महसूस किया कि जो एडल्ट्स हैं, मीन्स जो बड़े लोग हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। were not all they seem to be, जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं। कैसे? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly। वो बातें तो करते हैं प्यार की, ओके, लव, अफेक्शन, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो वो करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन और साथ में वो प्रीच्ड ऑफ लव का मतलब, प्रीचिंग का मतलब टू टेल समथिंग, ओके, किसी को कन्विंस करना, किसी को कुछ बताना, प्रीचिंग एंड प्रीचिंग आपने सुना होगा, ओके, किसी को उपदेश देना, राइट, कि भी किस चीज़ के लिए, कि भी आराम से प्यार से रहो, प्यार से बातें करो, एक दूसरे से प्यार करो, ओके, सबके लिए जो है अच्छी फीलिंग्स रखो, इस तरह की बातें तो एडल्ट्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ऐसे नहीं है, ओके, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन आपस में वो एक दूसरे से प्यार से व्यवहार नहीं करते। तो क्या ये वो दिन था जब मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि एडल्ट्स एक्चुअली हैं क्या, ओके, एडल्ट्स क्या हैं कि वो बस दिखाते हैं, वो दिखावा करते हैं, वो हिपोक्रेट्स हैं, हिपोक्रेटिक बिहेवियर करते हैं कि हमें लव से रहना चाहिए, आपस में ह्यूमन बींग्स को एक दूसरे से बॉन्ड ऑफ लव होना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली उनके अंदर नहीं है ये फीलिंग्स, वो बस कहने के लिए ये बात कहते हैं, लेकिन असलियत में वो ऐसा काम नहीं करते। तो क्या ये वो दिन था, ये वो रियलाइजेशन थी, उस समय मेरा बचपन मुझसे खो गया? कम टू द थर्ड स्टेंजा। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? अब poet again starts asking the same question कि मेरा बचपन मेरे से कब खो गया? तो क्या ये वो टाइम था जब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा जो माइंड है वो मेरा खुद का है? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose?
और मैं अपने दिमाग से वो सब काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, राइट। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट ऑफ दोज ऑफ अदर पीपल। प्रोड्यूसिंग थॉट्स यानी कि मैं अपने दिमाग से बिल्कुल रैशनल होकर कुछ भी सोच सकता हूँ, अपने विवेक से मैं सोच सकता हूँ कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ बैड फॉर मी, और वो थॉट्स अपने माइंड से प्रोड्यूस कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। ओके, हियर द पोएट एक्चुअली टॉक्स अबाउट इंडिविजुअलिटी, कि जब मेरा खुद का इंडिविजुअल बिहेवियर डेवलप होगा कि मुझे किस सिचुएशन के लिए कैसे रिएक्ट करना है, या मेरे माइंड में जो थॉट्स हैं वो किसी और के डाले हुए नहीं होंगे, वो मेरे खुद के होंगे। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि दूसरे लोगों के थोपे हुए या एनफोर्स किए हुई चीज़ें मैं बस फॉलो नहीं करूँगा, मैं अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम लूँगा। मेरी खुद की बातें होंगी, मेरी खुद की ओपिनियंस होंगी जो मैं रख पाऊँगा और उन्हें सोच पाऊँगा, बट माई ओन एंड माइन अलोन, और वो जो थॉट्स होंगे वो जस्ट मेरे ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही होंगे। तो पोएट कहता है कि क्या ये वो दिन था जब मैंने इस तरह से अपने दिमाग से, अपने थॉट्स से सोचना शुरू कर दिया, तो क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन मेरे से दूर हो गया। नाउ वी कम टू द फाइनल स्टेंस ऑफ द पोएम, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है ये चेंज हो गया है, ये जो फर्स्ट लाइन है स्टेंजा की ये चेंज हो जाती है। जो फर्स्ट 3 स्टेंजास हैं उसमें पोइट ने सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, लेकिन इस लास्ट स्टेंजा में उन्होंने पूछा है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। तो व्हेन इज रिप्लेस्ड विद वेयर, कब की बजाय अब पोइट पूछ रहे हैं कि भाई मेरा जो बचपन है वो कहाँ चला गया। It went to some forgotten place, and the answer is कि it went to some forgotten place, वो किसी ऐसी जगह पर चला गया है जिसे सब भूल चुके हैं। That is hidden in an infant's face. That's all I know. तो पोइट यहाँ बताना चाहते हैं कि मेरा जो बचपन है वो कहाँ चला गया, उसका आंसर ये देना चाहते हैं पोइट कि वो एक ऐसी जगह पर चला गया जिसको सब भूल चुके हैं, और वो एक इन्फेंट के फेस में जाकर छुप गया है। Here you can see the picture of a very very innocent child. He is just an infant, और आप देख सकते हैं कि इसके फेस से कितनी इनोसेंस दिखाई दे रही है। तो पोइट यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अगर वो अपने बचपन में फिर से वापस जाना चाहते हैं, तो वो अगर किसी भी छोटे से बच्चे को, बिल्कुल इन्फेंट को, न्यूली बॉर्न चाइल्ड को देखेंगे तो उसके फेस में जो है हमें क्या दिखेगा, हमारा खुद का बचपन। तो यहाँ पोइट यही बताना चाहते हैं कि हमारा सबका जो बचपन है, या जब हम बच्चे होते हैं, या जो भी बच्चे हैं, वो सब एक जैसे होते हैं, सब एकदम इनोसेंट होते हैं, सबके अंदर फेथ होती है, सबके अंदर एक इस तरह का चार्म होता है, एक ऐसा अपील करते हैं सब बच्चे कि जैसे वो एकदम भगवान का रूप है, राइट। तो इसीलिए ये जो गोल्डन फेज है इसको कंसीडर किया गया है, चाइल्डहुड को बहुत अच्छा एक समय माना गया है। तो ये थी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब जो स्टेंजास हमने रीड किए हैं उसके हिसाब से पोएम की राइम स्कीम जो बनती है दैट इज ABBCCD। अदर लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन द पोएम वो भी देख लेते हैं। देखिए रेफ्रेन यहाँ पर यूज हुआ है। रेफ्रेन होता है अ ग्रुप ऑफ फ्रेजेस विच इज रिपीटेड इन द पोएम। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, इस लाइन को बार बार रिपीट किया है पोएट ने। और वॉज दैट द डे, ये जो लाइन है ये भी बार बार रिपीट हुई है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो आपको पता ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा में, ओके। आने से तरह से वॉज दैट द डे, इसे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा में पोएट ने बार बार रिपीट किया है। तो ये जो लाइन है ये बन जाती है हमारी रेफ्रेन, अ ग्रुप ऑफ फ्रेज विच इज रिपीटेड, ओके, अगेन एंड अगेन। नाउ सेकंड लिटरेरी डिवाइस इज एंटीथेसिस, where two opposite words are used together in a sentence, it is called antithesis। जैसे hell and heaven, ये दो opposite words हैं, इनको इकट्ठा यूज किया है तो ये antithesis है। alliteration, इसके बारे में आपको पता ही है, the occurrence of the same letter of sound at the beginning of closely connected words, the time, my mind, whichever way, thoughts, that, okay। तो यहाँ पर alliteration यूज हुआ है। Here in these slides, I have provided you all the NCERT question answers, all the NCERT solutions. See, identify the stanza that talks of each of the following: individuality, rationalism, hypocrisy. मैंने हर stanza में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस स्टेंसा में पोइट इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, किस स्टेंसा में पोइट रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं, एंड किस स्टेंसा में पोइट हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, द स्टेंसास दैट टॉक ऑफ each of the quality in the questions are given below: individuality, third stanza; rationalism, first stanza; and hypocrisy, second stanza. What according to the poem is involved in the process of growing up? According to the poet, the loss of childhood is involved in the process of growing up.
This loss is compensated by some gains which come with adolescence. These are increase in understanding, power of rationalizing and discrimination, as well as a sense of individuality and self-confidence. What are the poet's feelings towards childhood? The poet regards childhood as an important stage in the process of growing up. Childhood is a period of make-believe. Children readily accept whatever the elders say. The poet does not feel any regret or sense of loss on losing his childhood. Which do you think are the most poetic lines? Why? The following lines in the poem are most poetic. सबसे ज़्यादा poetic lines कौन सी लगी आपको? सबसे ज़्यादा अच्छी lines, poetic का मतलब जहाँ पर सबसे अच्छा सा poet ने अपना effect डाला है. It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. वैसे भी poem की सबसे सुंदर lines यही हैं जो poem का last stanza है. These lines beautifully sum up the process of growth and the disappearance of a particular stage of life. These lines have a figurative or metaphorical meaning also. The infant's innocent face hides many things behind its smiles. Perhaps the childhood lies hidden in some forgotten place, lying buried deep inside a child's consciousness. अब देखिए, मुझे बार बार कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम जब भी आप पोएम कराओ तो प्लीज़ उसकी समरी ज़रूर प्रोवाइड किया करो, ताकि हमें जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करने में काफ़ी ईजी रहेगा और समझने में भी आसानी रहेगी. तो बेटा ये आपके लिए मैंने यहाँ पर स्पेशली समरी प्रोवाइड की है पोएम की. जितनी लंबी पोएम है उससे बहुत छोटी समरी यहाँ पर है. बस छोटी सी पोएम है मुझे पता है, एंड बिल्कुल ठीक छोटी सी ही समरी मैंने आपको यहाँ पर दी है ताकि आपको ईजी रहे लर्न करने में भी और अंडरस्टैंड करने में भी. आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में. In this poem, the poet Marcus Nathan discusses the loss of his childhood. The poet talks about that very moment where this innocence was lost. He talks about the various instances when he could have lost his childhood. Furthermore, a realization comes to the poet that the world is not what it seems. The poet believes that adults preach love, but their actions don't reflect that. The author tells us that his childhood went to some forgotten place. Moreover, the poet explains that his childhood is hidden in the face of an infant who is innocent. So with this, we come to the end of this very, very beautiful poem. Thanks a lot for watching. Thank you.